Thank God for Pastor Ebenezer and the team. They have come here with their children from the church, So Aragas, Blessy will now take over. Okay? They have a beautiful time. People come, yes, Blessing. So first of all, praise the Lord, everybody. Praise the Lord, church. So before we begin the program, I'd like to say just a few words about our mission. So Western India Gospel Mission. It started around 15 years ago. It started in a very small scale, in a very small place, actually. I was just a very small kid. It started as a Christmas program. I was a small kid sitting near a kitchen. Our house was small. We used to live in a slum area in a chawl where all our neighbors were Nepalis. So we called them for Christmas. We gave them the gospel. That's where it all began. And here we stand. So in 2011, we started our ministry in Gujarat. Then in 2013, me and my family completely moved from Mumbai to Vapi, and we still live there. So our ministry majorly is right now happening in states of Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, and 2 union territories, which is Daman and Dadra Nagar Haveli. We don't majorly focus in cities. Our missionaries and our mission is completely focused on Adivasi tribal people of the area. So today, among us, I am very happy and proud to introduce you to our Gujarat youth team. And we will be performing here a few programs which we actually do in our Christmas programs. During Christmas, through dance, through dramas, they preach God's gospel to the new believers and to the non-believers. There is no preaching, there is nothing such done. In our Christmas programs, all the scriptures or all the gospel that is to be delivered to the people are done through these dramas and through these dances only. So the whole program won't be here, or else it would take around 3 to 4 hours. But today we will be just performing one small glimpse of it. So I hope you all enjoy and may God's name be glorified. So the first event is a dance. It's a Marathi dance named Abhari. Abhari means being thankful. Thankful to God for everything that He has done for us. So the song is very beautiful. Ami Abhari re, Abhari manto Yeshula. So please encourage them with a round of applause. आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी
आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला खायला पियाला येशूने दिले पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली येशूने दिले खायला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला पापांची क्षमा येशूने केली आमची क्षमा येशूने केली नवं जीवन येशूने दिलं जीवन येशूने दिले पापांची क्षमा येशूने केली नवं जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे 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 आभारी मानतो येशूला बोला ख्रिस्त महाराज की जय 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 बोला ख्रिस्त महाराज की जय 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 बोला ख्रिस्त महाराज की जय 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 बोला ख्रिस्त महाराज की बोला 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 सारे बोला 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 सारे बोला बोला ख्रिस्त महाराज की जय जय बोला ख्रिस्त महाराज की जय जय येशूची प्रीती लय भारी लय भारी लय भारी येशूची शांती लय भारी लय भारी लय भारी येशूची प्रीती लय भारी लय भारी लय भारी येशूची शांती लय भारी लय भारी लय भारी बोला ख्रिस्त महाराज की जय जय 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 बोला ख्रिस्त महाराज की So I hope you enjoyed the first dance. So how was it? It was good. There's more to come. So as you heard the song Abhari, there is one great testimony that we are very thankful God for. So I request Ravi from our Gujarat youth team. He lives in Udwada, which is in Valsad district. So I'd like him to come and share his testimony. Ravi, आ जाओ अपनी गवाही दो. जय मसीह सबको. मेरा नाम रवि है. वैसे तो दिव्य से, लेकिन सब मुझे रवि कह के ही बुलाते हैं. मैं मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन और एक भाई है और एक दादी है. हम 6 जन हैं घर पे. और मैंने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है. मैं खाली 9वीं पास किया हूँ और एक कोर्स किया है ITI करके. ITI किया है. तो मेरी गवाही ये है कि
मैं 10 या 9 साल का था, तब मैं मेरे पापा वहाँ में जाते थे, वो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं ना, वो वहाँ में। तो उधर बहुत बीमार पड़ा था वो। बीमार मतलब इतना बीमार कि वो मरने पे था। वो पूरा हड्डी बड्डी सब दिखना चालू हो गया था और पूरा सूख गया था। तो मेरे मामा वो उस वहाँ का ड्राइवर था, तो इमिजिएटली उधर से वो लेके दरिया के पास आ गए और उधर से उसको घर पे लेके आए। घर पे लेके आए तो फिर हम उस टाइम पे हम इतना ज़्यादा विश्वासी नहीं थे। एक पैर इधर एक पैर इधर, थोड़ा भगत के पास तो थोड़ा प्रभु के पास, सॉरी, थोड़ा भगत के पास तो पहले मेरे पापा बोले उस भगत किधर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरी मम्मी बोले एक बार कि प्रार्थना में जाएंगे करके। प्रार्थना में 2 3 4 बार गए। प्रार्थना में 2 3 4 बार गए तो उधर से मेरे पापा को अच्छा होने लगा। वो पूरा हड्डी बड्डी सब दिख रहा था, वो धीरे धीरे पूरा भरने लगा और प्रभु ने उसको चंगा किया। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत चमत्कार हुए हैं मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु मुँह से धन्यवाद कर नहीं सकता मैं, इतना है। और दूसरा मेरी एक गवाही है, मेरी खुद की। हम लोग 2023 में चौथे महीने में तमिलनाडु घूमने के लिए गए थे 15 दिन के लिए, और बाइबल स्टडी थी 5 दिन की शायद। तो उधर 5 दिन और थोड़े दिन घूमे उधर। जाते वक्त तो अच्छे से चले गए। 2 दिन जाने के लिए लगा, दो उधर 6 7 दिन निकाले। और आने के टाइम एक दिन तो आराम से निकल गया खुशी खुशी। लेकिन दूसरे दिन में वो गुफा था ना, वो हमारे इधर वापी में किधर दिखता नहीं है गुफा। तो मुझे वो अचंभित था, ऐसा गुफा दिखने के लिए जाना मुझे। तो मैं उधर अपने सीट से उठा और देखने के लिए गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं उसके बाद हुआ क्या है। खाली मैं अपने सीट से उठा, उतने तक मुझे याद है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है मुझे। लेकिन सब बोल रहे हैं मैं फ़ोन लेके गया था, फ़ोन लेके गया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। शायद लेके गया था, मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैं लेके गया था उधर। तो शायद उधर गिर गया था, तो मुझे किसी ने देखा, सूरज, सूरज नाम पास्टर, सूरज करके एक लड़का है, उसने मुझे देख लिया। तो उसने आके पास्टर को बताया, इस सबको बताया। ट्रेन को चैन खींचा और जल्दी से ट्रेन रोक दिया। तो उधर मैं गिरा, फिर भी मैं चलते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं ये सब, मुझे ये पास्टर लोग ही बताए। तो मैं उधर से चल के आ रहा था, लगा बहुत था मुझे। इधर हड्डी टूट गया था, ये जबड़े का हड्डी, और ये इधर चमड़ा निकल गया था पूरा, और ये इधर भी बहुत लगा था सर में। 7 जगह पे लगा था मेरे को। और वो वीडियो फोटो देखेगा तो मुझे भी देखने के लिए होता नहीं है अभी, वैसा फोटो है। लेकिन उधर से मुझे ट्रेन में ही बैठा के रत्नागिरी स्टेशन पे लेके गए, उधर से हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल में पुलिस वाले आए थे, सब आए थे। मुझे पता ही नहीं उधर मेरा इलाज हो रहा था, ये टाके बाके कुछ लगा रहे थे। तब मुझे होश आया, और तब मैं पूछा, मेरे मामा का लड़का था इधर, अनिल भाई करके, उसने मेरी बहुत मदद की उस टाइम पे। वो मेरे साथ था, उसको मैंने पूछा लेकिन हुआ क्या है, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था अभी। मैं कैसे गिरा, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं मुझे। फिर उसको पूछा, फिर भी मुझे माइंड में वही, मेरा फ़ोन किधर है, ऐसा ही मन में चल रहा है। क्योंकि मैं लेके गया था, उससे सबसे महंगा था मेरा फ़ोन खाली। तो वही मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो फ़ोन गिर गया है, वो लोग मुझे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन घर पे है करके। लेकिन ठीक है, अच्छे से निकल गया। फिर मुझे उधर से आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में लेके गए तो उधर उसमें मैं 3 दिन शायद रहा आईसीयू में। तो 2 दिन के बाद मेरी मम्मी शायद आई। मेरी मम्मी आई, वो मुझे देख के रोती है, मैं उसको देख के रोता हूँ, क्योंकि पूरा चेहरा बहुत ख़राब हो चुका था। मेरी मम्मी भाई आईसीयू में से निकल के एक जनरल रूम में गए, उधर हमको बिठाया, एक बेड दे दिया। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तेरा चेहरा देखेगा तू, मुझे आईना दिखा रही है। मुझे नहीं दिखना, क्योंकि मेरा चेहरा इतना गंदा हो चुका था ना कि मैं खुद का चेहरा नहीं देखना चाहता था, इतना गंदा चेहरा हो गया था। लेकिन उधर से फिर 2 दिन बैठा है उधर, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया इधर जबड़े का। उधर फिर डॉक्टर से बात किया, वो बोल रहा है कि
इधर जबड़े का डॉक्टर ने इधर से तुम लोग को दूसरा हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल में भेज दे करके, लेकिन हम लोग को अपने गांव में आकर इलाज करवाने के लिए था। तो उधर उसको बोले मुझे अपने गांव में इलाज करवाना है करके, वो लोग, वो मेरे भाई लोग अनिल भाई है ना, वो लोग बोले। तो उधर से हम ट्रेन में आ गए, लेकिन ट्रेन में भी इतना भीड़ था ना कि पूछो मत। और मुझे लगा था मैं चल भी नहीं पा रहा था, खाली स्लोली स्लोली चल रहा था धीरे धीरे। उस टाइम पे मुझे मेरे भाई ने और मेरी मम्मी ने मुझे दौड़ा के ट्रेन पकड़ाया फिर से। और मुझे डर था क्योंकि हमने टिकट नहीं निकाला था, क्योंकि वो इमरजेंसी में चले गए था ना, तो टिकट निकाला नहीं था। तो टीटी रात को आया था, उधर 2-3 लोग थे इस सीट पे, तो सीट पे एक दो निकल गए उधर से, इधर आप सुला दीजिए करके। उधर मैं सो गया, नीचे मेरी मम्मी सो गई। और मेरी मम्मी को डर था कि टीसी आएगा तो पकड़ेगा करके, लेकिन उधर टीसी आया तो हम लोग के वो कंपाउंड के वो है ना सीट वाला, उस साइड देखा भी नहीं, उधर से सीधा चला गया। लेकिन जो गली में था वो लड़के लोग को सबको भगाया उधर से, क्योंकि उन लोग के पास टिकट था नहीं और हम लोग को पूछा भी नहीं। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद, नहीं तो उस दिन बहुत फाइन मार देता था बड़ा। तो उधर से फिर हम सेलवास में गए डॉक्टर के पास। सेलवास में जबड़े का डॉक्टर था, उधर हमने इलाज करवाया। उधर भी मैं शायद हफ्ता रहा, तो उधर भी मेरे साथ प्रभु था। मुझे डर लगता था, मुझे आपको सच बात बोलूं तो मुझे एक सुई से भी बहुत डर लगता है। लेकिन उस दिन मुझे बोतल चढ़ाया, हाँ हाँ वो चढ़ाया था। लेकिन तो इतना डर लग रहा था ना दिन में ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया। तो उधर से मैं उसमें जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में। तो उधर से चलते चलते जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। मेरी मम्मी, मेरा भाई था साथ में। तो वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे, मैं तुम लोग साथ में ही रहता ना, तुम लोग साथ में ही ऐसे मैं बोल के उन लोग के हाथ साथ में ले जा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं दरवाजे के अंदर पहुंचा तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, और मैं पीछे रह गई। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो फिर दिल में थोड़ा जोर जोर से टक 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 होने लगा, क्योंकि ऑपरेशन मैंने कभी करवाया नहीं ना, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे मैंने प्रभु को नाम लिया और थोड़ा सा डर कम हो गया। फिर मेरा नाम आया तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गया। उधर भी मैंने बोला सिस्टर कुछ होगा तो नहीं ना, पहली बार है, बहुत डर लग रहा है करके। लेकिन उधर भी सिस्टर और डॉक्टर भी बहुत अच्छा मिला था, तो उन लोग ने भी अच्छी तरह से ऑपरेशन कर दिया। और फिर 2 दिन शायद मुझे रखा हॉस्पिटल में। फिर मैं घर पे आ गया, और घर पे आ गया तो फिर इधर उधर निकल के लिए बहुत शर्म आता था मुझे, क्योंकि चेहरा बहुत गंदा हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे करके वो सब सही हो गया, खाली अभी थोड़ा सा दाग दिखाएगा इधर इधर कुछ। मेरे को 23 स्क्रू लगाए थे इधर, और दांत में इधर 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 ये 4 लगाए थे। वो 4 तो निकल गए, इधर के बाकी एक है अंदर के साथ। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। मैं मरने वाला था, मुझे क्योंकि ट्रेन की स्पीड मेरे हिसाब से 100 से ऊपर तो होगी। कोई बाइक वाला 50 की स्पीड से जाएगा तो भी वो उसका हड्डी टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, वो शायद बचे या ना बचे। लेकिन 100 की स्पीड से जा रही ट्रेन में मैं बच गया, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। So, Hebrew class has been going on among our youth. Semester 1 के लिए they went to Coimbatore, Udumalaipete. They went, they learned a lot. Everything was good. They even went for a tour in Kodaikanal. They enjoyed a lot, and on the way back, जब वो घर आ रहे थे दूसरे दिन, चालू ट्रेन में फास्ट एकदम, महाराष्ट्र का वो हिल रेंजेस के बीच में से ट्रेन जा रहा है एकदम फास्ट। वहाँ पे गुफाएं बहुत, जंगल, पूरा जंगल। वहाँ पे सुबह सब खाने बैठे हैं, नाश्ता, उनमें ये सर उठ के चले गए फोटो लेने। गए इतना फास्ट गाड़ी में, ही फेल ऑफ गुफा के बाहर। वो हमारे एक बिलीवर ने देख के ट्रेन खींचा, उतने में भी ट्रेन दूसरे गुफा में एंटर करने वाली थी। He was almost 2 to 3 kilometers behind. चालू ट्रेन में गिर के वहाँ पे भी उठ के he is coming. Believers they ran to catch him. उनको कैसे कैसे उठा के आए, हॉस्पिटल ले गए। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले कहते हैं कि
ये रत्नागिरी के आगे जितने भी लोग ट्रेन से गिरे हैं ना, कभी कोई जिंदा नहीं बचा. And he is alive, standing, breathing in front of us. In our Hebrew class, we learned about Yehovah Rapha, the true meaning of Yehovah Rapha. We think चंगा करने वाला परमेश्वर. यहोवा राफा यानी कि चंगा करने वाला परमेश्वर. यहोवा राफा means the God who weaves. His jaw broke. उनका जबड़ा टूट गया था. There are 23 screws in his mouth. Can you say? That is our God. He not just heals, he weaves it. There is no trace that something happened like this. आज इनको देख के कोई बोलेगा नहीं कि वो मौत को देखकर वापस आए हैं. So life that we have is given by God, and if God wishes, God takes it. So this is one great testimony that we are forever thankful God for, and thank you. So now there is a drama, one of our favorite dramas actually. It does has a plot twist and very unexpected plot twist. So I would like everybody to pay attention and enjoy the drama. Let's welcome the team. Jesus. अरे यार, आज तो बहुत कंटाला आ रहा है. क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, चलो ऐसे ही घूमते घूमते थोड़ा फ्रेंड के पास जाता हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा, उससे थोड़ा बातचीत करता हूँ. हाय फ्रेंड, कैसा है तू? अरे अचानक से तू यहाँ अरे कैसे? क्या बताऊँ, मुझे भी बहुत कंटाला आ रहा था, इसके लिए आया. क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना, किधर तो कब से घूमने के लिए गए नहीं है. हाँ. अभी जाते हैं किधर तो घूमने के लिए. मैं क्या सोचा है कि राजा का दरबार देख के आते हैं, क्योंकि फिल्मों में ही देखा है राजा का दरबार, रियल में कभी देखा ही नहीं. अरे ऐसी ठंडी में जिधर 8 से 13 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ किधर घूमने जाएंगे? अपना वाट लग जाएगा पूरा. अरे फिर भी चल ना, घूम के आते हैं राजा का दरबार, रियल में देख के आते हैं राजा का दरबार, बहुत मजा आएगा. ठीक है चल, तेरे साथ साथ में मैं भी घूम लेता हूँ फिर. चल चल. राजा जी पधार रहे हैं. सब शांत शांत लग रहा है. सिपाही, जी राजा जी. सेनापति किधर मर गया रे? दिखाई नहीं दे रहा है. अभी बुलाती हूँ. सेनापति हाजिर हो. जी राजा जी. कहाँ गए थे? दरबार में रहना चाहिए ना तेरे को. आपने कैसे याद किया मुझे? कैसे याद किया मतलब? दरबार है, कितने सारे काम पड़े, कौन देखेगा? दरबार में रहना चाहिए ना तेरे को. राजा जी, गांव में कुत्ता मर गया था, उधर जाना पड़ा मुझे, नहीं तो आपके पास जल्दी आ जाता. अच्छा ऐसी बात है. ठीक है कोई बात नहीं. अरे सुन ना. हाँ बोलो राजा जी. आज का दिन अच्छा नहीं है, सब ठंडी लग रहा है, कुछ जोश नहीं है. क्या हुआ? मूड अच्छा नहीं है. एक काम करना, मेरे लिए अच्छे से एक नाच गान करने वाले कवि को बुला के लेके आ. क्या बात करते हो राजा जी, मैंने रास्ते में आते आते कवि को देखा था, रास्ते पे गा रहा था. ठीक है बुला के लेके आओ, जो मुझे खुश कर दे. ठीक है, जो आ गया राजा जी.
राजा की जय हो। ए, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसे गुस्ताखी करने के लिए हमें माफ कीजिए महाराज। हम लोग इंडिया से आए हैं राजा का दरबार देखने के लिए। राजा के पास ऐसे नहीं जा सकते, पहले राजा का परमिशन लेना जरूरी है। अरे हम लोग ने फिल्मों में सिर्फ राजा का दरबार देखा है, तो एक बार देखा दो ना हम रुको रियल में। रुको रुको, मैं राजा से पूछ के आता हूँ। ठीक है। राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा जी, कोई इंडिया से आए हैं दरबार देखने के लिए, क्या उनको इजाजत दी जाए? हाँ बुलाओ उसको। चलो, राजा ने आपको बुलाया है। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा चिरंजीवी रहे। राजा जी, हमें आपका दरबार देखना है, हमें परमिशन मिलेगी? कौन रे, ये दोनों आए हैं? हाँ राजा जी। हाँ ठीक है ठीक है ना। एक बात का ध्यान रहे, मेरे दरबार में चुपचाप देखने का, चुपचाप सुनने का, कुछ बोलने का नहीं, समझेगा? जी राजा जी। सेनापति, हमारे दरबार में बैठा दो किसी अच्छी जगह पे। ओके, चलो आओ इधर, इधर आओ। यार, रास्ते में जाते जाते आते आते मैंने किसी कवि को देखा था। आपने देखा वो कवि को? नहीं, क्या बात करते हो, कहीं आपने देखा? भाई इधर कोई कवि था क्या? ए भाई, आपने कोई कवि को देखा था? बताइए, मैं ही हूँ। या क्या बात करते हो? हाँ, ठीक है, आपको राजा ने बुलाया है, चलो आपको अच्छा सा कुछ गिफ्ट देंगे। अरे जरूर, क्यों नहीं। मेरे गाने सुनकर अच्छे अच्छे लोग पागल हो क्या? मतलब दीवाने हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन चलो राजा के पास। ठीक है, चलो, चलिए चलिए। किसी को बोलना नहीं हम चोर है, ठीक है। भिखारी भी है, वो भी बोलना मत। राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा, जैसा आपने बोला था वैसा मैं लोग को लेके आया हूँ। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ उसको। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हजारों साल जिए। रुको भाई, महाराज अब क्या सुनना पसंद करेंगे? अरे आज मूड अच्छा नहीं है, सब सुनाओ एक एक करके। लेकिन एक बात, क्या है सुनने में? बहुत कुछ है। तमिल है, तेलुगु है, मराठी सॉन्ग है, हिप हॉप है, चिकन बिरयानी, सॉरी मैं खाने का नाम ले लिया। बहुत कुछ है, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सब सुनाओ सब सुनाओ। जी जरूर, आप कान लगा के सुनिएगा। मेरा तबला ठीक है, सुर लेना, ठीक है, सुर। आहा, मधुर मधुर। सेनापति, बोलो। जाओ हमारी तिजोरी में से सोना चांदी पैसा जो कुछ है सब लेके आ। ठीक है राजा जी। आहा, उत्तम उत्तम, क्या उत्तम गाना है। आहा। सेनापति, मेरी तरफ से भेंट के रूप में रख के आओ। तू बजा ता थी ता थी थी ता थी आहा, ता थी वाह 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 वाह। आहा, सेनापति, ये ले और भेंट के रूप में रख के आ। आहा, वाह वाह वाह, मधुर मधुर। आहा, सेनापति, क्या कवि लाया रे, दिल खुश कर। ये ले और रख के आ। आहा, सेनापति, ये भी रख के आ। वाह 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 वाह। आहा, उत्तम उत्तम, क्या उत्तम गाना गाया। आहा, बस 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 बस। वाह सेनापति वाह, कहाँ से कवि लाया था? अरे बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल। क्या बोलूं, आते आते रास्ते में गा रहा था। अच्छा ऐसा है। महाराज की जय हो। महाराज अब हमें इजाजत दीजिए, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आहा। ए रुको रुको रुको, मेरे पैसे सोना चांदी को क्यों हाथ लगा रहे हो? सेनापति, हाँ राजा जी। ये सोना चांदी जहाँ से लेके आओ वापस तिजोरी में रख क्या? लेकिन राजा जी, ये तो हमारे ए, गाड़ी पे हट हट। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा नहीं है ये। सुन, ना तूने मुझे कुछ दिया ना मैंने तुझे कुछ दिया। देख, तूने मुझे
गाना सुना के दिल बहलाया। मैंने भी तुझे अपना सोना चांदी धन दौलत दिखा के तेरा दिल बहलाया। न तूने मुझे कुछ दिया, मैंने तुझ कुछ दिया, हिसाब बराबर। सलामती जी राजा जी। जा, इसको जहाँ से ले गया वापस छोड़ गया। चल भाई, तू रास्ते में गाने के लिए अच्छा है तो जा। वाह, मजा आ गया, पॉकेट में सुन लिया सब। मेरा सोना चांदी कितना मेहनत से कितनों को लूट लूट के कमाया, साला कभी लेके जाना चाहता था। आहा, मजा आ गया। तूने देखा ना दरबार में राजा कितना चालाक है। अरे क्या? अरे माननी पड़ेगी राजा की चालाकी। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है बहुत। क्योंकि अभी राजा ने हमने देखा ना, जब तक गाना गाया तब तक राजा खुशी हुआ, उसके बाद वो खुशी कहाँ चली गई। ऐसे बहुत राजा की चालाकी मानना पड़ेगी, है ना। अरे तेरी बात एकदम सही है। ये हमारा दिल भी कभी तृप्त होता ही नहीं है। हाँ। और चाहिए करके रहता है। बराबर। देखो, जब तक गाना गा रहा था तब हाँ। तक राजा को खुशी मिल रही थी। राजा पैसा दे रहा था, भिखारी को खुशी मिल रही थी। बराबर। वो भिखारी खुशी तो बाद इतना में- खुशी हुआ पूछो मत। बाद में वो मिला ही नहीं। सच में। वैसे ही देखो, आज बहुत सारे लोग हैं हाँ जो दुनिया के पीछे पड़े हुए। हाँ ना। क्या करो, उनको भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे जो है थोड़ी समय के लिए मजा देती है, हाँ ना। लेकिन बाद में देखो कुछ भी नहीं है। बराबर। लड़के लोग लड़की के पीछे है, लड़की लोग लड़के के पीछे है। क्या करो उनको, मैंने तो ऐसे देखे नस काट लेते हैं। अरे बाप रे, हाँ, क्या बात कोई तो जहर पी लेता है। हाँ। हाँ, फांसी खा रहे हैं अरे करके। बाप रे, फांसी भी खाते हैं? थोड़े से सिर्फ मजे के लिए। बराबर। प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ना। दारू पीने वाले और दारू पी रहे अरे हैं, बाप रे। सिगरेट पीने वाले और सिगरेट पी रहे हैं। मैंने अरे कुछ लोग तो ऐसे है, पैसे के पीछे इतने पागल है, पूछो मत। सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे। हाँ ना। हाँ, लेकिन क्या उन पैसों का। बराबर। ऐसी कोई एक चीज है जो टिकती है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है। क्या कहती है बाइबल? मतलब ये आंखों की चीजें जो दिखने में आती है वो थोड़े समय के लिए है, वो मिट जाएगी। ऐसा है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वही सर्वदा रहेगा करके। हाँ ना। क्योंकि आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड सारे मिट जाएगा। अरे बाप रे, लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वही टिकेगा करके। ऐसा है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? नहीं पता ना, बोलना तू ही। अरे हमें मोबाइल में रील्स देखने का टाइम है, रील्स बनाने का टाइम है, लेकिन अरे वचन पढ़ने के समय ये क्या है? ऐसा है। नींद आती है वचन पढ़ने के समय। बराबर। मोबाइल के लिए बहुत समय है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, क्या करेगा। लेकिन हमें अभी ऐसा नहीं रहना है। हाँ तो थोड़ा बुद्धिमानी के साथ चलना है। बराबर। ये क्योंकि बात ये बिल्कुल मजा सही बोला। थोड़े समय के लिए है, लेकिन वचन हमेशा के लिए है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, उसको थोड़ा पढ़ना है, उसके लिए समय निकालना है। बराबर। क्योंकि ये आंख से दिखने वाली हर चीज हमारे लिए मिट जाएगी। मिट जाएगी। बराबर। हमें मरने के बाद भी अच्छी जगह पे जाने का है, तो वचन पे चलना पड़ेगा, उस वचन पढ़ना पड़ेगा। हाँ ना। इसके लिए आज के बाद से तू समय को हाँ वेस्ट मत कर। ठीक है, ठीक थोड़ा है, बुद्धिमानी से चल, आगे हमारे लिए बहुत है। ठीक है, ठीक है, वचन पे थोड़ा ध्यान दे। ठीक है। अभी आगे से बाइबल पढ़ूंगा। How was it? How was the plot twist? Very unexpected. So it's true. खुशी 2 पल की है, आज है कल नहीं, 1 घंटे पहले थी 2 घंटे बाद नहीं. So the happiness that this world gives is just like a fraction of seconds और चुटकी बजाने तक ही होती है. But the happiness or the life that God gives is forever. It is eternal. It is said, the verse he said, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा. It's in 1 John 2:16. Can we have the scripture? 1 John 2:16. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does come not from the Father, but from the world. What God gives is what God gives. It's happiness which lasts forever, and we can
there are no word just to describe that, what God gives. So this was the drama and hope you enjoyed. Now again, we have a dance by boys. So I'd like to welcome them. Please encourage them and welcome them with a round of applause. दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो गुणगान गाता रहूंगा मैं उसके चाहे ये दुनिया खिलाफ हो सांसों में जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो गुणगान गाता रहूंगा मैं उसके चाहे ये दुनिया खिलाफ हो जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का उसके लिए ही मैं गाऊंगा अरे जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का उसके लिए ही मैं गाऊंगा मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ लहू से अपने खरीद लिया पूरा का पूरा बदल दिया दुनिया ना देगी ऐसी खुशी जो यीशु ने मुझको दे दिया लहू से अपने खरीद लिया पूरा का पूरा बदल दिया दुनिया ना देगी ऐसी खुशी जो यीशु ने मुझको दे दिया जीना मेरा अब यीशु मसीह है मरना भी उसको पाना है जीना मेरा अब यीशु मसीह है मरना भी उसको पाना है मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की 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 मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ We have a drama again. It's a musical drama.
So let's welcome the performers. इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और पहले ही क्षण से दुनिया के तौर तरीके सीखने लगता है। वो दुनिया को निहारता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में घुलने लगता है। बढ़ती उम्र के हर पड़ाव के साथ वो दुनिया को समझने लगता है और अपने आप को उसका एक हिस्सा बना लेता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उसकी सोच, उसके विचार कायम होने लगते हैं और वो दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाता है। फिर आती है दुनियावी जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए वो कर्म के मार्ग पर चलता जाता है। अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ नियम बनाता है और दुनिया के ज्ञान को भी अपना लेता है। नेकी कर दरिया में डाल, फल की चिंता मत कर यार, कर भला तो हो भला और लग जाएगा बेड़ा पार। जीवन के चक्र में कर्मों के तार में इंसान उलझ जाता है। वो सोचता है कि वो जिंदगी जी रहा है, पर केवल एक भूल भुलैया में भटकते रहता है। हर दिन एक नई जिम्मेदारी, हर दिन एक नया कर्म मार्ग, पर इससे बढ़कर और क्या? क्या इससे आगे हमारे जीवन के कोई मायने नहीं? इतनी बड़ी दुनिया में क्या हमारे वजूद का दायरा इतना छोटा है? इंसान जिंदगी के रहस्य को जाने बिना एक यंत्र की तरह जीता है। अपने वजूद को समझे बिना वो अंधकार में है और झूठ में जीता है। इंसान के पास कई सवालों का जवाब नहीं, तो फिर किस बिना पर वो अपने आप को बुद्धिमान कहता है? कौन है जो समंदर की गहराई जान सकता है? कौन है जो जमीनों आसमान को नाप सकता है? कौन जानता है कितने तारे चमकते हैं आसमान पर? कोई इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे बना सकता है? क्या आपने कभी इन बातों पर गौर किया? क्या आपने अपने खुद के जीवन को समझा है? आप कहां से आए हैं और इस जिंदगी के बाद कहां जाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इन रहस्यों का भेद आपके सामने खुले? क्या आप अपने जानकर अनजान बनने वाली फितरत से बदलना चाहते हैं?
सही बदलाव के लिए पहले सच जानना बहुत जरूरी है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई खुदा है। खुदा ने जमीन और आसमां को बनाया, हमें बनाया और हर अच्छी चीज से नवाजा है। जीवन के चक्रव्यूह से बचने के लिए इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सृष्टि के निर्माण करता सच्चे परमेश्वर को जाने और ये बात समझ ले कि सिर्फ उसके और उसके कारण हमारा वजूद है। ये मुक्ति की तरफ पहला कदम होगा। मुक्ति क्या है? मुक्ति यानी छुटकारा दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से, अंधकार से, आने वाली मृत्यु से, नरक की आग से। एक वक्त था जब लोग इन बातों पर ध्यान देते थे, लेकिन आज बदलते जमाने के साथ जिंदगी की भागदौड़ में लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। लेकिन यह बदलाव केवल इंसान और उसकी सोच में आया है, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं बदला। आंखें बंद करके देखो, समय जैसा था वैसा ही है, जमीन जैसी थी वैसी ही है, और खुदा का प्यार हमारे लिए जैसा था वैसा ही है। खुदा प्यार है, जिंदगी है, सच्चाई है, लेकिन इस दुनिया में एक और मौजूदगी है जो खुदा की तरफ से नहीं। शैतान। वो नफरत और झूठ से भरा हुआ है और मृत्यु है, और उसी के फैलाए हुए जाल में आज इंसान फंसा हुआ है और सच्चे खुदा से दूर है। लेकिन ये हमारे लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं। उसने हमें बनाया है तो वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। बाइबल में परमेश्वर का वायदा है कि उसकी योजना हमारे लिए कुशल की है, ना कि हानि की, और हमेशा की तरह खुदा ने अपने वादे को पूरा किया है। आज से करीब 2000 साल पहले एक शख्स इस धरती पर जन्मा। उद्धारकर्ता मसीहा, इस अंधेरी दुनिया की रोशनी, खुदा का अपना एक लौता बेटा। खुदा ने उसे इस धरती पर भेजा और उसके द्वारा हम सबको शैतान के जाल से निकलने का मौका दिया। वो एक ही है जो हमें इस दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से और पापों से आजाद करता है। उसका नाम है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से जन्मा, हूबहू खुदा, निष्पाप होते हुए भी वो क्रूस पर चढ़ गया, एक बलिदान के रूप में। क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना कीमती लहू बहाकर उसने हमें शैतान की चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। पाप की पगार तो मृत्यु है। इस नश्वर दुनिया से मिलकर, बुराइयों में जीकर जो मृत्यु हमें मिलनी चाहिए, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और अपना अनंतकालीन और पवित्र जीवन हमें दे दिया, एक भेंट के रूप में। यही तो उद्धार है। याद रखें कि उद्धार एक भेंट है, मुफ्त है। इसे पाने के लिए हमें किसी कर्म मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं। बाइबल हमें बताती है कि इंसान अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि अनुग्रह से विश्वास द्वारा बचता है। इसीलिए उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, और वो हमें बचा लेगा।
यीशु मसीह ने कहा, सच सच कहता हूं मैं तुमसे, जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर चलता है, जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। जिस तरह यीशु मसीह भी मरकर तीसरे दिन हमेशा के लिए जीवित हो उठे, उसी तरह वो हमें हमेशा की जिंदगी देने आए हैं। आज समय है नजात का, मुक्ति का, चुनाव का, और ये चुनाव आपको करना है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, नश्वर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, अनंतकालीन है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें मौका दिया है कि हम उस पर विश्वास करके नए सिरे से जन्मे, आत्मिक रूप से। क्या आज आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? तो आज ये प्रश्न आपके लिए उठता है, क्या यीशु संग चलना है? क्या आप सच्चे खुदा के साथ एक रिश्ता कायम कर जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्योंकि चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों उसमें जाते हैं, लेकिन तंग है जिंदगी का मार्ग, बहुत कम उसे पाते हैं। फैसला आपको करना है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं। यीशु संग चलना है, जीवन को बदलना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना 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 है। Thank you, team. So, very simply, if I am to describe the whole thing that we saw here, God created this world to be flawless. That we just be in awe whenever we look at it. All that it has changed is as humans. दुनिया वैसे की वैसी है. दुनिया कहीं भाग नहीं गई, ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी नहीं हुई. बदल तो हम इंसान गए हैं. हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम बदल देते हैं. पहले हम अलग थे. परमेश्वर ने हमको बनाया कैसे था?
आज हमारी ज़रूरतें कैसी है, आज हम रहते कैसे हैं। जो भी ये संसार देता है वो कुछ काम का नहीं। जैसे वचन में भी है, वी हैव इन शुभोपदेशक 12:8 Ecclesiastes 12:8, meaningless says the teacher, everything is meaningless. The only thing that is worth it, the only thing that is worth any treasure is God and the salvation and the eternity, the life that He gives. So now we have come to an end for our event. Now last we'll be concluding with a garba. So let's welcome the team. जय बोलो प्रभु यीशु ख्रिस्तनी, जय जय बोलो मसीहानी। ये तो प्रार्थना सुने सब भक्तोनी, जय जय बोलो मसीहानी। जय बोलो प्रभु यीशु ख्रिस्तनी, जय जय बोलो मसीहानी। देवे जगत पर एटलो प्रेम कर्यो, जय जय बोलो मसीहानी। तेणे मानवनो अवतार धर्यो, जय जय बोलो मसीहानी। तेणे शीरे कंटक ताज धर्यो, जय जय बोलो मसीहानी। ते थंभे पापी काज मर्यो, जय जय बोलो मसीहानी। त्रण दाड़ा कबर मारयो, जय जय बोलो मसीहानी। ते त्रीजे दी मुआती जीव तो थयो, जय जय बोलो मसीहानी। ते गगन में पाछो चढ़ी गयो, जय जय बोलो मसीहानी। ते तारण नु दान सौने देतो गयो, जय जय बोलो मसीहानी। जागो नर ने नार, छेल्लो छेरे आपोकार। આવ્યો રે આવ્યો ન્યાયનો દિન, થઈ જાવો ને સૌ તૈયાર, તમે થઈ જાવો ને સૌ તૈયાર। घंट वागे रण सिंगड़ानो नाद गाजे, ओ रे ओ घंट वागे रण सिंगड़ानो नाद गाजे। ओ रे ओ घंट वागे रण सिंगड़ानो नाद गाजे। खोज दूतो निरोज प्रार्थना करे, खोज दूतो निरोज प्रार्थना करे। शाने तमे लगाड़ो नेवार, जागो रे जागो नर नेना, छेल्लो छेरे आपोकार।
બળતી મુકાય તેને હૈયે છે દુઃખ અપાર પ્રભુજી કરશે જગતનો ન્યાય ઓરે ઓ ઈસુ પ્રભુજી કરશે જગતનો ન્યાય ઓરે ઓ ઈસુ પ્રભુજી કરશે જગતનો ન્યાય ઘેટાને બકરા જુદા કરાય ઘેટાને બકરા જુદા કરાય પાપી જનોને તે ફેંકી દેવાય આવ્યો રે આવ્યો ન્યાયનો દિન થઈ જાઓ ને સૌ તૈયાર તમે થઈ જાઓ ને સૌ તૈયાર So I hope you all enjoyed all the